So good morning, all of you. The next topic is electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? Whenever there is a change in the number of magnetic field lines linked with a conductor, an electromotive force is developed between the ends of the conductor. In place of EMF, in electromotive force, you can write EMF also. This is a new word for you. Electromotive force is developed between the ends of the conductor, which lasts as long as the change is taking place. यानी कि जब तक magnetic field lines linked with the coil is changing, तब तक EMF will be developed between the ends of the conductor. Once the magnetic field lines becomes constant, change नहीं हो रहा है, either increasing or decreasing, no electromotive force, या यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह हम और सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड changes in the region of the coil, and this phenomenon is called electromagnetic induction. तो इंड्यूस्ड करंट कब होगा कॉइल में? Induced current in a coil will flow only when the magnetic field will change in the region of the coil. जब तक magnetic field change, यहाँ word change बार बार आ रहा है, इस change word को हमेशा ध्यान में रखना है. change होना चाहिए, either increase or decrease. ये change हमेशा आना चाहिए. तो magnetic field linked with the coil changes, then only electromotive force will be developed. या potential difference will be developed between the ends of the conductor. तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इसमें एनर्जी चेंज क्या हो रहा है. एनर्जी चेंज इज मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. इन मोटर वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. यहाँ हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. तो हियर वी आर गिविंग मोशन. इसमें मोशन दे रहे हैं आइदर टू द मैग्नेट और टू द कॉइल. या तो मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाओ या फिर कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाओ. यानी कि दोनों के बीच कौन सा मोशन होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए. रिलेटिव, देन ओनली पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड. तो यहाँ सबसे पहले वी आर गिविंग मैकेनिकल एनर्जी, एंड ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. सो एनर्जी conversion in electromagnetic induction is mechanical energy to electrical energy in the presence of magnetic field. Mechanical to electrical in the presence of magnetic field. अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जगह तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो. अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स. ये मिसनोमर है, ये फोर्स नहीं है, बट एनर्जी पर यूनिट चार्ज. एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. V is equal to W by Q. We have studied in the electricity chapter. But energy per unit charge, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. वही है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. Required to separate electrons in an electric cell. Electromotive forces are voltages which push to do work on electrons from high potential to the lower potential. यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या काम है या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है? टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और वो डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है.
कि जब तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा एट द एंड्स ऑफ द कॉइल, no current will be induced in the coil. This was about electromagnetic induction. Now there is one experimental demonstration of electromagnetic induction. ये experimental demonstration को पहले समझना है. What is this experimental demonstration? Here this is a cylindrical object. It can be either made up of paper or it can be wooden. Hollow structure है तुम्हारा या solid भी हो सकता है, कोई दिक्कत. Hollow हो तो ज्यादा better है. So it should be an insulator and coil is wrapped around it. यानी कि ये तुम्हारा अब बन गया solenoid. And a galvanometer is connected to the ends of this solenoid. एक galvanometer यहाँ पर connect किया गया है. Now here what is galvanometer? Galvanometer is an electrical device which determines the direction of the flow of current. वो current का direction बताता है कि in which direction the current flows and also measures the small amount of current. ये करंट भी मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर करेगा और डायरेक्शन भी बताएगा इन विच डायरेक्शन द करंट फ्लोज. सो अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ ends of the solenoid. Now here we have taken a bar magnet and initial position of this bar magnet is at rest. यानी कि ये जो है V0 है. V0 मतलब there is no motion in the bar magnet. It is initially at rest. Now when it is initially at rest, you will observe that there is no deflection in the galvanometer. Galvanometer एकदम straight है, यानी कि ये zero reading पर है. तो zero reading पर है, इसका मतलब क्या हुआ? No current is induced in the coil. इस coil में, इस solenoid में coil induce नहीं हुआ because there is no deflection in the galvanometer. Galvanometer की जगह हम बल्ब भी लगा सकते हैं. Now when this coil, when this magnet is moved, north pole of the magnet is moved towards the coil. यानी कि अब दोनों के बीच आ गया relative motion. Coil तुम्हारा rest में, magnet motion में. When the north pole of the magnet is moved towards this coil, you will see that the galvanometer, there is deflection in the galvanometer in a particular direction, that is towards right. तो deflection आ गया. Deflection क्यों आ गया? क्योंकि इसमें current induce हो गया. And because the current gets induced, the galvanometer shows deflection. Now, this bar magnet is again brought to rest. As soon as it comes near the coil, इसको फिर rest में रखा गया, यानी कि V0 हो गया. As soon as it comes to rest, what happens? Again, you will see that there is no deflection in the galvanometer. यानी कि now the current is not induced in the coil, due to which there is no deflection in the galvanometer. Fourth experiment में ये दिखाया गया है कि as the magnet is moved away, second experiment में था magnet is moved towards, and the fourth experiment में है the magnet is moved away. यानी कि अब फिर relative motion आ गया. So you will see that again there is deflection in the galvanometer, but there is a difference in the deflection in experiment B and experiment D. In both the cases, current is induced. Difference यही है, the direction of the current is changed. In the second experiment, the deflection was towards right, but in the fourth experiment, the deflection is towards left. यानी कि as the magnet is moved away from the coil, again the current is induced, but the direction of the current changes, due to which the galvanometer shows deflection in the opposite direction in comparison to figure B. And in the last case, we are seeing that the south pole of the magnet is moved towards the magnet. South pole move किया जा रहा है. In the second case, we have seen that north pole is moving towards the magnet, but in the last case, we are seeing that south pole of the magnet is moving towards the coil. So when the south pole of the magnet is moving towards the coil,
again the current is induced. लेकिन दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? Again the current is induced in the opposite direction. In the second case, the current is induced towards right, when the north pole is moved towards the magnet. But in the last case, when the south pole is moved towards the magnet, the current is induced opposite to that, यानी कि towards the left. अब इस पांचों एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकल के आया. कंक्लूजन क्या आया कि whenever there will be a relative motion between the coil and the magnet, potential difference or electromotive force will be developed at the ends of the conductor. And once the potential difference gets induced at the ends of the conductor, what will happen? The current flows through the coil. लेकिन यहां पर देखोगे, in the first figure and in the third figure, in both the cases, magnet is in the state of rest. यानी कि there is no relative motion between the magnet and the coil. तो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है कॉइल से. ऐसा नहीं कि लिंक्ड नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लिंक्ड विद द कॉइल. किसका मैग्नेटिक फील्ड? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद द कॉइल. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल इज नॉट चेंजिंग. ना तो इंक्रीज हो रहा है, ना तो डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर सेकंड केस में when the magnet is moved towards the coil, magnetic field lines linked with the coil increases. और fourth case में when the magnet is moved away from the coil, magnetic field lines linked with the coil decreases. यानी कि इंक्रीज, एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है. यानी कि क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो जैसे ही चेंज आया, magnetic field lines linked with the coil, current will be induced. So this was the experimental demonstration. Now, अब उसी का explanation, the previous experiment that you have seen, उसी का ये Faraday's explanation है. Faraday ने इस experiment को कैसे explain किया? First explanation is when there is no relative motion between the magnet and the coil, the total number of magnetic field lines due to the magnet passing through the coil remains constant. यानी कि जब दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, then the magnetic field lines linked with the coil remains constant. कांस्टेंट होता है, ना तो इंक्रीज करता है, ना तो डिक्रीज करता है. जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है, लिंक्ड रहता है लेकिन चेंज नहीं होता है. सो रिमेन्स कांस्टेंट. देयरफॉर नो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन. और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. सेकंड क्या है कि when there is relative motion between the coil and the magnet, the magnetic flux, यहाँ पर एक word use किए हैं, there is no this kind of word in your NCERT book. In your NCERT book it is magnetic field lines. तो तुम लोग magnetic field lines लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. magnetic field lines ही लिखना है, ठीक है. The magnetic field lines linked with the coil changes. जब relative motion होगा coil और magnet के बीच में, then the magnetic field lines या magnetic flux linked with the coil changes. अब जब change होगा तो क्या होगा? If the north pole of the magnet is moved towards the coil or the coil is moved towards the north pole, जरूरी नहीं है कि magnet को ही motion में रखा जाए, coil को rest में रखा जाए. You can put magnet in rest and coil in motion. दोनों में से कोई भी motion हो सकता है, लेकिन relative motion होना चाहिए. Or the coil is moved towards the north pole of the magnet, the magnetic field lines या magnetic flux through the coil increase. Due to the change in the magnetic field lines or magnetic flux linked with the coil, EMF, electromotive force, the potential difference is developed or induced in the coil, and this potential difference causes the current to flow in the coil if the circuit of the coil is closed. जब सर्किट क्लोज है यहाँ पर, तो
उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, एंड व्हेन द करंट गेट्स इंड्यूस्ड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. यहाँ वर्ड इंड्यूस लिखा हुआ है. इंड्यूस मतलब इसके प्रभाव से. यहाँ पर देखोगे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दोनों में, न तो मैग्नेट कॉइल के कांटेक्ट में है, न तो कॉइल मैग्नेट के कांटेक्ट में है. कोई फिजिकल कांटेक्ट, हम मैग्नेट को कॉइल के बीच से भी निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कांटेक्ट. कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. यू कैन मूव द मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल. हम पूरा मैग्नेट को कॉइल के बीच से निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कांटेक्ट. तो इसके प्रभाव से, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से, उसे को इंडक्शन कहते हैं, इसके प्रभाव से, मैग्नेट के मोशन के प्रभाव से क्या हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. सो दिस वाज फैराडेज एक्सप्लेनेशन. नाउ यहाँ पर एक वर्ड हम यूज किए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स. ये पढ़ना नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a given closed surface. जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के एरिया से पास कर रहा है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. passing through the given closed surface, and it gives the measurement of total magnetic field lines that passes through the given surface area. और इसका ऐसा यूनिट होता है वीबर, कैपिटल W स्मॉल p, and mathematically we denote it B dot A. और ये साइन है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, EHI, फाई. Now, till now we have studied two methods of inducing current in the coil. दो मेथड अभी तक पढ़ चुके हैं. पहला मेथड है either the magnet is moved towards the coil, और सेकंड है और the coil is moved towards the magnet. तो दो मेथड यहीं पर हो गया. How to induce the current in the coil. पहला है that should be the motion of the magnet, yeah, when the magnet is moved towards the coil, keeping the coil at rest. And the second is the coil is moved towards the magnet, keeping the magnet at rest. दो मेथड हो गया. लेकिन उस दोनों मेथड में we have seen that we have to give mechanical energy. वहां पर मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब मोशन है, किसी एक में मोशन, मैकेनिकल एनर्जी, देन ओनली इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि इसलिए हमको उसमें मोशन देना पड़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल को चेंज कराना है. बट दिस इज थर्ड मेथड, हाउ टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल. ये तीसरा मेथड है, इसमें कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं दिया जा रहा है. विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी मैकेनिकल एनर्जी, हाउ द करंट गेट्स इंड्यूस्ड फ्रॉम वन कॉइल टू द अनदर कॉइल. दिस इज द एक्टिविटी विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. हम वहीं से लिए हैं. एक्टिविटी 13.9 है. First of all, I will explain you the experimental setup of this. ये क्या है? This cylindrical object, ये जो है एक cylindrical object है, which is made up of either paper or wooden structure. इस पूरे इलेक्ट्रिकल ये इंसुलेटर पर दो कॉइल रैप किया गया है, कॉइल 1, कॉइल 2. कॉइल 1 को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, कॉइल 2 को सेकेंडरी कॉइल. नाउ कॉइल 1 is connected to battery and a plug key. Primary coil is connected to a battery and a plug key, and the secondary coil is connected to a galvanometer. Secondary coil को galvanometer से connect कर दिया गया. अब इसमें करना क्या है? Plug in the key, मतलब अब इस की को क्लोज करना है, ये करंट को ऑन करना है. Plug in the key. Observe the galvanometer. Galvanometer हमको ऑब्जर्व करना है. जैसे इसको ऑन करेंगे, you will see the galvanometer. जैसे ही galvanometer को देखेंगे, is there a deflection in the needle?
क्या डिफ्लेक्शन होगा? यस, होगा. You will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to zero, indicating a momentary current in coil 2. इसका मतलब समझो, जैसे ही यहाँ कॉइल करंट को ऑन करते हैं, what happens, there is a momentary deflection in the galvanometer, यानी कि ये galvanometer में थोड़ा देर के लिए डिफ्लेक्शन होगा, and again it will come to zero. वो करंट इज नॉट ऑफ, हमने यहाँ करंट ऑफ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ऑन किए, what happens, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा देर के लिए डिफ्लेक्शन हुआ, और फिर अपने आप वो गैल्वेनोमीटर जीरो पर आ गया. जीरो पर क्यों आ गया, उसका भी रीजन बतलाते हैं. वो करंट हमने तक तक ऑफ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो जीरो पर आ गया. ऐसा इसलिए हुआ कि as soon as we have switched on the current, what happens, इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगा, प्राइमरी कॉइल में. इन ईच टर्न द करंट फ्लोस एंड ईच टर्न इट्स इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. हर एक टर्न अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सॉलिनॉइड. एंड करंट जैसे मान लेते हैं, इस पूरे कॉइल में करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मान के चल रहे हैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. तो जैसे ही ऑन करेंगे, एकाएक 1 एम्पियर नहीं होगा, वो करंट बढ़ेगा, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा. लेकिन ये जो बढ़ रहा है वो बहुत फास्ट चेंज होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, बहुत फास्ट चेंजिंग होता है. तो जैसे ही करंट बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है. और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस, गेट्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, कॉइल 2 से लिंक हो जा रहा है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है कॉइल 2 में. तो जैसे ही कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है कॉइल 2 में, यानी कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, चेंज आ रहा है. चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, ये चेंज आ गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है, यानी कि अंदर जा रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद कॉइल 2 में इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच इसमें डिफ्लेक्शन आ गया. जीरो पर क्यों आ गया, जीरो पर इसलिए आ गया कि अब ये करंट स्टेडी वैल्यू पर आ गया, अब ये 1 एम्पियर आ गया. अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो लिंक्ड है, लेकिन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. neither the magnetic field increases or decreases, यानी कि now the magnetic field linked with the coil 1 with coil 2 becomes constant. यहाँ word constant बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कांस्टेंट हो गया, neither it increases or decreases. जब कांस्टेंट हो गया तो इसका क्या मतलब होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल चेंज नहीं होगा, और जब चेंज नहीं होगा, then the deflection will become zero. नेक्स्ट क्या है, डिस्कनेक्ट कॉइल 1, कॉइल 1 को डिस्कनेक्ट कर दो, यानी कि यहां से की ऑफ कर देते हैं, करंट ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द बैटरी. यू विल ऑब्जर्व दैट नीडल मोमेंटरली मूव्स, फिर डिफ्लेक्शन होगा, बट टू द अपोजिट साइड. अब ये अपोजिट साइड में होगा, इट मींस दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो, जैसे ही यहाँ स्विच ऑफ किए, स्विच ऑफ करने से क्या होगा, the magnetic field which was linked with the coil 2 now decreases. अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा चुका था, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो निकल रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. तो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल 2 चेंजेस, क्योंकि अब करंट इसका जीरो पर आ रहा है, जैसे 1 एम्पियर से फिर जीरो पर आ रहा है. तो जब जीरो पर आ रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है. और जैसे ही चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल 2, व्हाट विल हैपन, अगेन देयर विल बी डिफ्लेक्शन. लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अपोजिट डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीज हो रहा है, अब ये उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन फिर होगा, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन थोड़ा देर के लिए होगा, एंड अगेन दैट डिफ्लेक्शन अगेन इट विल कम टू जीरो. क्यों जीरो पर आ रहा है, क्योंकि अब तो करंट ऑफ ही कर दिए हैं, तो फिर वो वापस जीरो पर आ रहा है. तो इन दिस यू विल सी दैट
द मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रहा है, दैट गेट्स लिंक्ड विद द कॉइल 2 बाय स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। अगर मान लो इसी की को हम ऑन ऑफ करते जाएंगे तो क्या होगा, ऑन ऑफ करते जाएंगे तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो राइट लेफ्ट होते चला जाएगा, लेफ्ट राइट ऐसे चला, इट विल नॉट स्टॉप, ये राइट लेफ्ट होते चला जाएगा, ऑन ऑफ करते रहेंगे। तो हियर यू विल सी दैट देयर इज नो देयर इज नो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इट, यहाँ पर कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। बिना मैकेनिकल एनर्जी के वी आर इंड्यूसिंग करंट इन द secondary coil with the help of primary. This is the third method how to, और यही जो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसी टाइप के करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।